फोटोवोल्टिक सिस्टम, आप फोटोवोल्टिक सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो उसका मेंटेन हम लोग देखेंगे, परफॉर्मेंस पार्ट को देखते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस जो है उसका मेंटेन रखा जा सकता है। एज यू नो दैट द लाइफ ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम इज approximately 25 years. So what is the meaning of 25 years? It means not you have installed the system and forget it. You will have to maintain the system regularly to clean the surface of the photovoltaic system so that the performance will maintain. Otherwise, there is a swelling loss there due to the presence of the dust particle and the earbuds. So you have to maintain in 10 days or in a week by removing that dust particle or earbuds from the surface of the panel so that the solar radiation coming from the sun can go directly to the surface and it can generate more and more power. If the irradiation directly not falling on the surface, it get diffused, the generation of the power by the panel will also reduce and ultimately the performance of the system will reduce. So, for the better performance, you will have to maintain the surface of the solar photovoltaic panel. So what are the main precaution or what are the condition and how you can maintain the performance of the solar photovoltaic system, we will see in today's session. So this is the all of you can see the slides. Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay. Voice is clear. My voice is audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are in the maintenance. These are the basic things. Basically, PV system is low maintenance system. No more skill and knowledgeable people required to maintain the solar photovoltaic system. A layman person can maintain the performance of the photovoltaic system and can maintain the system. What is the basic things? Generally, maintenance, keep clean is a common sense. Maintain means keep clean. Keep clean your house floor. Keep clean your table surface, etc. So this is the meaning of the maintenance here. So cleaning of the PV model. These are the content. Cleaning of the PV model, cleaning of the battery terminal in case of the off-grid system, cleaning of the floor, cleaning of the system, dust, birds dropping, rust, corrosion, split acid, split acid, dust, insect, wave, etc. These are the content that can regularly coming out from the environment on the surface of the panel or on the battery. So, in a regular manner, during a 1 week or after 10 days, you will have to clean the surface of the panel as well as the battery. So, maintenance of the battery, the main part of the battery. The maintenance of the battery is what? How you can maintain the performance of the battery? The main things is to maintain the level of the electrolyte. Top of distilled water. Generally, we are regularly maintaining the level of the water in the battery. You can see in your household in the battery there is a stick that indicate the level of the water at the certain level that is indicated by the red mark. If the level is going down, what we are doing, just pouring the water inside the battery so that the level will maintain. So this is the main maintenance part, electrolyte. Just top of the distilled water. Electrolyte avoids stratification. Take once a week. What is the meaning of stratification? The electrolyte available in the battery gets settled down after certain time duration. If the charging and discharging is not centralized, not continuously running, then what happens? The main electrolyte gets settled down in the bottom. So the gets separated into two. The whole electrolyte gets separated into two parts. The concentrated acid part gets
get settled down in the bottom and the water will be on the top. So what I have to do in a week or in after 10 days, just shake it so that the whole the acids or the electrolyte get mixed up and work properly. The electrolyte avoid sulfation. Maintain the full charge, avoid overuse. Generally, never try to discharge the battery under the below the depth of discharge. What is the meaning of sulfation? Just you can see on the end of the at the two end of the battery where the we are connecting the positive end and the negative wire. There is a deposition on the wire connecting wire that is known as sulfation. Sulfation, and there is a greenish deposition on the wire, and after some times it get break up. So generally what I have to do, just remove it and use a lubricating oil or grease to avoid such types of deposition. So voltage equalization automatic by cell voltage equalization automatic by charging. If you will charge, then your battery voltage will get maintained. If the battery get discharged, the voltage of the battery will also reduce. So what I have to do, just charge the battery. If you will charge, it will automatically get maintained. Sounds easy but extremely difficult to do. This is the general cleaning process for the PV model. In case of the PV model, first of all, in a week or after 10 days, just clean the surface. Clean the surface of the photovoltaic panel so that the every dust particle and what is deposited on the surface get cleaned out. Otherwise, the sun run coming from the sun get diffused from the surface, and the proper irradiation does not falling on the surface, and the generation of the current or the power will reduce. So what I have to do, just use water or soft cloth to clean the surface. Nothing I have to use hardly the acid and etc. Just liquid water or soft water. Use soft water. Take a water in a bucket or a mug and throw it on the surface and just clean by the soft cloth. Never use detergent. If you will use the detergent, there is a spot formation on the surface and it will diffuse the sunlight or irradiation falling on the surface. Now, never try to use the detergent and other things. Just use soft water, not hard water, just soap water, and simply clean the surface by the soap cloth, or you can also use a wiper. By the wiper help of wiper, you can remove the water and it get clean because the solar photovoltaic surface is already covered by the glass. And this glass have a good quality and better transmittivity, so you can just clean out by the water. Don't use other detergent or acid for cleaning the PV model. And in case of the battery, clean the spirit acid, avoid skin contact of the acid. As you know that the acid can damage your skin, so always keep your skin away from the spirit acid. Charge controller. Remove insect and dust. In case of the charge controller, nothing is required to maintain, but after some time duration, you can see in your household also on the surface there is a dust particle get deposited there. So in case of the charge controller, some dust particle or insect get deposited there. So just remove it. Otherwise, it can be generate an insulation surface and just resist the flow of the electron. So this is the things. And in case of the light, clean the diffuser cover. As you can see in your household, if you are using LED, there is a white color cover that is known as
diffuser that can distribute the light full out in the room or in the outer surface. So after some time, the surface will get deposited by the dust particle and sunlight coming from the LED that did not come out properly. So what I have to do, just clean the diffuser surface by wet wick or by a wet cloth. Remove the insect and dust from the surface. Inspection and monitoring. This is the process under which our expert required that have knowledge about the solar photovoltaic system, and it can use should be conducted by adopting and should be conducted by using measuring equipment. Generally, in the solar photovoltaic system, we are using multimeter for checking the different parameters like VOC, open circuit voltage, short circuit current, maximum voltage, and maximum current. So by the help of multimeter or clamp meter, you can measure the different parameters and should be conducted by using 6 sense. Expert having a knowledge about the solar photovoltaic system, it can see your site and tell you about the major things have to change or what is the condition of your project. So in the inspection and monitoring, key to the ensure system reliability and sustainability, and must understand the meaning of the system parameter. The expert should have knowledge about the different parameters. Monitoring without the understanding of the system parameter is useless. Suppose that a person coming to inspect your project, but he did not know what is the meaning of the open circuit voltage, short circuit current, what is the irradiation parameter, what is the P max, what is the MPPT value, what is the etc. If the a person coming for the inspection should have knowledge about everything, every parameter, and the only qualified people can conduct the proper monitoring. If you are doing a project anywhere in the India and hope that in the future you will get the 30% of the subsidy from the government, a person will come from the MNRE to inspect your project. If your project is properly installed, earthing and all the earthings and the other parameter required as per the condition is fulfilled, then your project will be approved by the MNRE people, and your project will be under the process for the subsidy. Otherwise, if your project did not approved by the MNRE, then you cannot claim for the subsidy. So it is a major issue generally to install the system or purchase the system from any company. First discuss with him, your company can be approved by the MNRE. Is it possible to your project can be approved by the MNRE? Is it possible your project quality and the level is as better as MNRE demand? So first of all, if you want a subsidy from the government organization, so try to maintain the level and quality of the project. Otherwise, government will not approve the subsidy and you will did not get 30% subsidy. होता क्या है कि अगर आपने प्रोजेक्ट अपने घर पे लगाया, हम ले आए पैनल अपने घर पे लगा लिए और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट हमें 30% सब्सिडी देगी, नहीं देगी। उसको अगर सब्सिडी लेना है तो जो आपने प्रोजेक्ट लगाया है उसके लिए एमएनआरई में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एमएनआरई से आपका एक्सपर्ट पर्सन आएगा, वो एक्सपर्ट पर्सन क्या करेगा, उसका इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद वो अप्रूव करेगा कि आप एलिजिबल है सब्सिडी के लिए या नहीं।
यदि उसमें कमी होगा तो वो बता देगा कि ये मेजर इसमें प्रॉब्लम है और ये चीज आप सॉर्ट आउट कीजिए तभी आपको अप्रूवल मिलेगी। तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं किसी कंपनी के थ्रू लगा रहे हैं तो हमें क्वालिटी ऑफ द वर्क देखना पड़ता है कि जो कंपनी ये लगा रही है वो क्वालिटी मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर अच्छी कंपनी है तो क्वालिटी मेंटेन करेगी तो इजीली आपको एमएनआरई से अप्रूवल मिल जाएगा। यदि ये लोकल कंपनी है जो कि मीनिंग नहीं जानती है कि क्या है ये मॉनेटरी सिस्टम क्या है और इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेमन लैंग्वेज है, वो बस आया ऐसे इंस्टॉल करके चला गया, तो उस केस में आपके जो प्रोजेक्ट है उसका अप्रूवल एमएनआरई से नहीं होगा क्योंकि वो आपको अप्रूव नहीं करेंगे। जो आपका जो प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल हुआ है, जो इंस्टॉलेशन हुआ है, प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसको मेंटेन नहीं कर रखा है, इसीलिए आपके अप्रूवल नहीं होंगे और आपको सब्सिडी नहीं मिलेंगे। तो ये एक मेजर इशू है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। Inspected and approved why it is required. See here, one is 30 degree and the other is flat. A multi person having a knowledge what is the altitude angle it will set up here at the same angle, and if it is in northern hemisphere it will be south facing, if it is in the southern hemisphere it will be north facing. But here the panel is on the flat surface, that means there is no meaning of this. So this is a totally useless. And what is this PV panel are facing west? As we know that it may be south facing or north facing depending on the northern hemisphere or southern hemisphere. But it is toward the west. That means this is totally useless. Collision, no grease. See here, this green part is known as sulfation. This is the sulfation and this is the collision part and get deposited at the wire connected to the battery terminals. And it will damage your connecting wire after certain time duration, approximately in 2 months or 3 months. What is this? This is the high risk of the short circuit. As you can see, this is the properly work finished. This is the properly finished. But here the wire it is open to open, so ultimately after sometimes and few days it may be generate a short circuit, and this one is also properly connected. So such types of mistakes may be in the industry or yeah, or in the project, so be careful about all these things. Here you can see there is a temperature sensor was cut off. The temperature sensor indicates that what is the temperature of the this junction box, and if the temperature will increase too much, you can check here what are the major fault inside the junction box. So by the help of temperature sensor, you can identify the problem and the mishappening it may be in the future. You can identify by the help of temperature sensor, but the temperature sensor is already get cut out from the here. And high risk of the short circuits, as you can see, 1, 2, 3, and 4 terminals of the panel is openly connected here. So it is a high risk of the short circuit. See here, installation behind a big बैबो ट्री, ये बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ है। इसका कोई मीनिंग है? ये तो वही इंसान कर सकता है जिसको कुछ नॉलेज नहीं होगा, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। Why these are approved? Because inspector did not know what solar PV system did. अगर इसका अप्रूवल हो रहा है इसका मतलब है कि जो आपका इंस्पेक्शन करने आया है, जो इंस्पेक्टर है, उसको जीरो नॉलेज, उसे कुछ पता नहीं है। ठीक है, हाउ दे कुड बी इंस्पेक्टर? बिकॉज दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड क्यों ये इंस्पेक्टर बना होगा। जब उसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है तो बस कैसे आया है ये सब समझ सकते हैं। इंस्पेक्टर शुड है क्या क्या नॉलेज चाहिए इंस्पेक्टर को? प्रॉपर नॉलेज, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट बेसिक्स एंड एडवांस लेवल पे उसकी नॉलेज है। गुड स्किल टू चेक द सिस्टम पैरामीटर्स, गुड टेक्निकल सेंस, नीट क्वालिफिकेशन ऑफ द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो होना चाहिए शुड बी गुड क्वालिफाई होना चाहिए एंड प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। What electricity is individual. Everyone knows that electricity is individual. Need to measure several parameters to check the system status. These are the parameters, as all of you know that what is the meaning of battery voltage, battery current,
PV voltage. There are two types of the PV voltage. Say the maximum voltage and the open circuit voltage. Current, there are two types of the current: short circuit current and the maximum current. Load voltage, load current, specific gravity. This is the बैटरी स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम क्या करते हैं कि बैटरी जो होता है उसमें ग्रेविटी मीटर लेते हैं, उसमें हम डालते हैं, फिर चेक करते हैं। अगर उसमें ग्रेविटी मीटर आप चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर एसिड एंड जो वाटर जो लिक्विड वाटर आपने जो डाला है वो दोनों की अगर मिक्सचर अगर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ग्रेविटी में वो इंडिकेट कर देगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड पे जो डिपोजिशन हुआ, जो एसिड जो है वो डिकम्पोज इजीली मिक्सअप है और वो ग्रेविटी से पता चलेगा। यदि उसने डाला और उसमें वाटर एक तरफ है और एसिड एक दूसरी तरफ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इंडिकेट करेगा वो मेजर कर देगा, वो बता देगा कि यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर सेटल डाउन हो रहा है। आपका एसिड वाटर ऊपर जाता है तो वाटर का ग्रेविटी ज्यादा है। तो ये चेक होता है बैटरी के लिए। अगर बैटरी कब होता है, 3 साल 4 साल के बाद ये प्रॉब्लम होती है। 3 साल 4 साल के बाद क्या होता है, बैटरी में आपका एसिड सेटल डाउन होने लगता है और वाटर ऊपर जाता है, और आपका क्या करेगा, चार्जिंग वो प्रॉपर्ली नहीं देगा, आपका बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो ये सब का इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक होता है बैटरी के लिए। बैटरी टेम्परेचर, इरेडिएशन, पीवी टेम्परेचर, ये सारे पैरामीटर चेक करते हैं। पीवी टेम्परेचर जो अभी आप देखते हैं कोरोना के लिए जो यूज होता है, कोरोना चेक करने के लिए जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज होता है वही ये यूज होता है वहाँ पे। आप नॉर्मल थर्मोमीटर भी यूज करें, डिजिटल थर्मोमीटर होता है, अपने लैब में डिजिटल थर्मोमीटर है, उससे आप उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। क्यों टेम्परेचर चेक करते हैं ये पहले आपको बता रखा है। या 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एचटीसी कंडीशन है, तो उससे बियॉन्ड जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका परफॉर्मेंस घटेगा। इरेडिएशन कितना वाट पर मीटर स्क्वायर सोलर से इरेडिएशन आ रहा है सरफेस पे, ये बताता है आपका इरेडिएशन। तो मस्ट अंडरस्टैंड मीनिंग एंड मेजर वैल्यू फॉर द क्वांटिटी। ये सारे मीनिंग उसको समझ में आना चाहिए, ये पैरामीटर उसको पता होना चाहिए ताकि वो मेजर कर सके, वो बता सके। तो ये इंस्पेक्शन के जो टीम आती है उसके लिए ये सारे नॉलेज इसेंशियल है। आई थिंक आप लोग भी इसके बारे में जानते होंगे, तो आप लोग भी एलिजिबल है एज ए इंस्पेक्टर, आप इसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। पैरामीटर टू मेजर एट द मॉनिटर, क्या क्या पैरामीटर यूज करता है, बैटरी वोल्टेज, उसके बाद बैटरी करंट, उसके बाद पीवी वोल्टेज, ठीक है, उसके बाद पीवी करंट, उसके बाद लोड वोल्टेज एंड लोड करंट, ठीक है। यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन आपको दे रखे हैं। PVV and EID are the normally difficult to measure. You must evaluate the status of the system with this parameter. You must understand the relation of the parameter. Pay attention to the ये see here. This is the panel. यहाँ से क्या हो जाएगा, ये है आपका पैनल वोल्टेज एंड ये है आपका करंट, या IPV जो देख रहे हैं, दिस इज द पैनल करंट। अब यहाँ पर जब आया तो ये जहाँ पे चार्ज कंट्रोलर में कनेक्ट हुआ है, दिस इज द क्या है, कनेक्टिंग जो वोल्टेज है, इधर चार्ज कनेक्टर फोटोवोल्टेक पैनल का वोल्टेज है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका लोड है, तो ये क्या है आपका वोल्टेज ऑफ द लोड है। यहाँ पर ये क्या है, बैटरी है, तो ये क्या है, कनेक्टिंग बैटरी जो उसका लोड है ये यहाँ पे है। तो ये सारे पैरामीटर्स है जो मेजर किए जाते हैं। अब रही बात किसकी, वोल्टेज मेजर करना है, तो आप सिंपली वो आप ऐसे मल्टीमीटर यूज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पे इंडिकेट करेंगे, वोल्टेज का सिलेक्ट करेंगे, आपको वोल्टेज मेजर हो जाएगा। करंट मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, इसके सीरीज में लगाएंगे, यहाँ से वायर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और इसमें सीरीज में हम मल्टीमीटर को लगा देंगे। यदि क्लैंप मीटर है तो जस्ट इस वायर में आप उसको होल्ड कीजिए, क्लैंप कीजिए, अपने आप ये करंट बता देगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें पैनल के केस में देखें, तो अगर इसका ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला तो ये दोनों टर्मिनल हमने ओपन किया, इसमें वोल्टमीटर को लगा देंगे, हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा। अब ये बात की करंट निकालना है तो करंट को कनेक्ट कर देंगे हम इसके, यहीं पे डिस्कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, हमें इसमें करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। ये होता है क्लैंप मीटर जो जनरली सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम में पैरामीटर को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्लैंप मीटर बोलते हैं, ठीक है। AC/DC एंड AC/DC करंट मीटर होता है। अब इसमें मैक्सिमम जो रेंज है करंट जो आप मेजर कर सकते हैं 10 एम्पियर, ठीक है, और मिनिमम जो होगा 0.0 एम्पियर। वोल्टेज जो है 600 वोल्ट तक आप ले सकते हैं, मिनिमम 0.0। और स्पेस चेक और इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी चेक,
मैक्सिमम 40 एम्पियर। तो इसमें स्पेसिफिकेशन ये सारे दिया गया होता है। वन क्लैंप टेस्टर इज इनफ टू मेजर द प्राइम पैरामीटर। एक क्लैंप मीटर अगर आपके पास है तो यू कैन चेक ऑल द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड इन द सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम ओनली द करेंट पैरामीटर, नॉट द सन से जो इरेडिएशन आ रहा है ये आप मेजर नहीं कर सकते हैं। जो पैनल जनरेट कर रहा है पावर उसको मेजर करने के लिए आप क्लैंप मीटर यूज कर सकते हैं, इससे आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपको करंट निकालना है जस्ट पुश इट, ये दोनों बटन जो है पुश इट, ये आपका क्लैंप ओपन होगा, आप वायर में उसको होल्ड कर देंगे, छोड़ देंगे, आपको यहाँ पे ये रीडिंग करके करंट बताएगा। इसको आपको क्या करना है, इसको फिक्स करना है, एम्पियर पे फिक्स करना है। अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को वोल्टेज पे फिक्स कर देंगे, वोल्टेज फिक्स करेंगे और इसमें दो टर्मिनल होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हम पैनल के पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, वहां से आपको वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग, ये सब क्या क्या ट्रबल शूटिंग इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या है, बैटरी। बैटरी की लाइफ जनरली जो होते हैं 6 ईयर टू 7 ईयर होती है। ठीक है, ड्राई अप अनसुटेबल वाटर इज एडेड, जैसा कि वाटर लेवल हम जानते हैं कि ऑलवेज मेंटेन करना होता है। ओवर डिस्चार्ज, अगर आप डिस्चार्ज करेंगे तो सल्फेशन होगा। ओवर डिस्चार्ज करने का मतलब क्या है कि जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो होता है आपको बता रखा था कि 70% होता है, तो अगर 70% से बिलो ले जाएंगे आप, 70%, 75 या 80% आप डिस्चार्ज करेंगे तो वो ओवर डिस्चार्जिंग कहलाता है, तो सल्फेशन का फॉर्मेशन होगा। कॉजेड बाय द एसिड, एसिड जो निकलता है फ्लो से कॉजेन होना, दीज आर द मेन फैक्टर इन द बैटरी। बैटरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो ये चीजें हैं, मे बी ड्यू टू द कोलिजन, कभी क्या हो सकता है वायर डिस्कनेक्ट हो सकता है, वो लगेगा कि लगा हुआ है, आपको उसको चेक करना पड़ेगा, वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो बैटरी, तो आपको इन्वर्टर से या फिर जो सिस्टम जो पैनल जो पावर जनरेट कर रहा है बैटरी में नहीं चार्ज करने में यूज होगा, नहीं बैटरी से आप पावर ले सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट में अगर देखें जो फ्यूज इसमें लगा होता है, चार कंट्रोलर जो है उसमें फ्यूज लगा होता है, तो कभी कभी क्या होता है जो ओवर लोडेड हो जाता है या फिर यूज कर रहे हैं कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज क्या होता है जनरली, ये फ्यूज ब्लो डाउन, ये आपका फ्यूज जो है वो आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, ये फ्यूज उड़ जाएगा, तो आपको इसको चेक करना है। ठीक है, इसकी लाइफ 10 साल तक होती है। एंड ड्रिप ऑफसेट पॉइंट वोल्टेज, जिसमें जो पॉइंट वोल्टेज है उसको आप कहाँ पे क्या होता है कि चेंज हो जाता है, आपने पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे तो ये डैमेज हो सकता है। डैमेजेस बैटरी एंड मिसमैच टू द बैटरी। मिसमैच करने का मतलब वही इट वेरिएशन हो गया, पॉजिटिव को नेगेटिव में लगा दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव में लगाया, तो ये सारे प्रॉब्लम आपके चार्ज कंट्रोलर में होते हैं। चार्ज कंट्रोलर में जनरली प्रॉब्लम नहीं होता है, जनरली ये फ्यूज ही आपका प्रॉब्लम होता है। अगर उसमें जनरल प्रॉब्लम होने को तो 5 साल या 10 साल में कैसे कंडेंसर लगे होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होता है, लेकिन जनरली वो प्रॉब्लम नहीं होता है जब तक कि आपने जो स्पेसिफिकेशन लिया है चार्ज कंट्रोलर का कि अगर 12 वोल्ट का है और 12 एम्पीयर कैपेसिटी है, अगर उसको मीट किया है, उसको आपने फिक्स रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ओवर सप्लाई करेंगे तो ये आपका बर्निंग आउट हो सकता है। थर्ड पॉइंट मतलब ये है मिस ओरिएंटेशन एंड टिल्टिंग। जनरली क्या होता है, हमने आपको बताया था ये एटीट्यूड एंगल होता है, उसपे हम लोग क्या करते हैं टिल्ट करते हैं, और फेसिंग क्या करते हैं, अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो साउथ फेसिंग करते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ फेसिंग करते हैं, और एंगल निकाल लेते हैं हम लोग गूगल से मेजर कर लेंगे, देख लेंगे और उस एंगल को साउथ फेसिंग और देखना है, नॉर्थ फेसिंग देखना है, उसके लिए हम लोग कंपास यूज करते हैं। कंपास यूज करके हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं पार्टिकुलर लोकेशन का, और उस साउथ फेसिंग में हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि गाजियाबाद का मैंने पहले बताया था 28.65 एटीट्यूड, तो हम लोग जनरली 30 डिग्री लेते हैं फॉर द माने सिंपलिसिटी आपको इजी पड़े, इसके लिए हम लोग 30 डिग्री पे एंगल पे इसको ऐसे पैनल को इंस्टॉल करते हैं और साउथ फेसिंग रखते हैं, क्योंकि गाजियाबाद क्या है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो साउथ फेसिंग हम लोग रखेंगे। दूसरा क्या है डस्ट, जो डस्ट जो फिर डिपॉजिट हो रहा है उसको क्लीन करना है, नहीं अगर आप करेंगे तो फिर क्या होगा, परफॉर्मेंस हो जाएगा। क्रैक बाय द स्टोन, सपोज दैट किसी ने इस पे स्टोन मार दिया या आंधी आई है गिर गया, तो जो क्रैक होगा तो वहां पे भी सन का जो रेडिएशन आ रहा है वो डिफ्यूज करेगा, वो प्रॉपर्ली फॉलिंग आउट नहीं हो पाएगा सरफेस पे। शैडो या क्लाउडी सीजन है तो ये डैमेज करेगा, एंड फिर ये तो कुछ इंडिया में हो नहीं सकता, चोरी करने वाला तो चोरी करेगा ही, उसको क्या कर सकते हैं। सोलर एनर्जी,
climate, ये totally depend on the climate condition. We cannot do anything else to change the solar energy condition. Totally क्या होगा, climate condition पे depend करेगा, हम आप इसको change नहीं कर सकते. DC light, burn out of inverter, उसके बाद blackening of the tube and lack of the tube supply. क्या क्या हो सकता है, आपका इन्वर्टर बर्नआउट हो सकता है. डीसी लाइट है तो डीसी लाइट में जनरली इन्वर्टर नहीं बल्कि आपका चार्ज कंट्रोलर यूज होता है. तो चार्ज कंट्रोलर कभी कभी क्या हो सकता है कि बर्नआउट हो सकता है. क्यों बर्नआउट होगा, जब हेवी करंट सप्लाई होगा और आपने जो चार्ज कंट्रोलर यूज कर रखा है वो लो कैपेसिटी का यूज कर रखा है. यदि आपके घर में एसी लूट लगे हुए हैं तो वो क्या कर रहा है, डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा. तो फिर जो इन्वर्टर जो होगा वो इन्वर्टर की कैपेसिटी के बियॉन्ड जाएगा तो वो बर्न आउट हो सकता है. चार्ज कंट्रोलर है वो बर्न आउट हो सकता है अगर बियॉन्ड जाएगा. ब्लैकनिंग ऑफ द ट्यूब, अगर लाइट है तो लाइट में क्या होता है, वो ब्लैक कलर का हो गया, इसको समझ जाइए वो फ्यूज हो रखा है. लैक ऑफ ट्यूब सप्लाई, ठीक है, लैक ऑफ ट्यूब सप्लाई. ट्यूब सप्लाई करने का मतलब कि वो जो हम लोग ट्यूब जो यूज करते हैं उसमें वो अगर सप्लाई नहीं हो रहा तो ये क्या मैंने ट्रबल्स, ये सारे ट्रबल्स हो सकते हैं. केबल्स, वोल्टेज ड्रॉप, ओपन और शॉर्ट, ठीक है, वो केवल वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं, ओपन और शॉर्ट हो सकते हैं. वोल्टेज ड्रॉप क्यों होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो केबल है, केबल में जो होता है वो रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द केबल आप कैसे यूज कर रहे हैं. और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जनरली सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो केबल यूज करते हैं वो मोटे डाया, ज्यादा डाया का यूज करते हैं. अप्रोक्सीमेटली 10 mm या 50 mm डाया का हम लोग केबल यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एज पर द ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज V इक्वल टू I इनटू R. जब I इनटू R हो रहा है, अगर R इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू L अपॉन A होता है, ठीक है. तो जब आपका A बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, R घटेगा. और ये कब बढ़ेगा, जब आप डाया बढ़ाएंगे. जो डाया है आपका वायर का उसको अगर बढ़ा देते हैं तो आपका R डिक्रीज हो जाएगा. R डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब है कि I इंक्रीज करेगा और वोल्टेज आपका बढ़ेगा. अब रही बात कि वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज किन किन चीजों से ड्रॉप होता है आपको पता है. सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम में जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसकी वजह से ड्रॉप होता है. केबल में अगर आपने लो डाया का यूज कर लिया तब होगा. ओपन और शॉर्ट, अगर आपने पतली वायर यूज किया है तो आपका कभी अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उससे होगा, ठीक है. तो ये सारे केबल्स में प्रॉब्लम, केबल्स में ज्यादा प्रॉब्लम होते नहीं है क्योंकि प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है. और जनरली इन द सोलर सिस्टम वी आर यूजिंग कॉपर केबल. जनरली एक आपका कॉपर इज हाई कंडक्टिव मटेरियल होता है. हम लोग गोल्ड और सिल्वर तो यूज कर नहीं सकते हैं. कॉपर वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल, जनरली कॉपर वायर ही यूज होता है. और ये जो होता है आपका वायर्स में कोई प्रॉब्लम आपको ट्रबल शूटिंग की जरूरत नहीं है. मेन जो है आपका प्रॉब्लम होगा वो बैटरी में होगा, चार्ज कंट्रोलर में होगा और स्विच सॉकेट में हो सकता है. कहीं पे क्रैक्स हो सकते हैं, कांटेक्ट फेलियर हो सकता है, आप शॉर्ट कर सकता है. कांटेक्ट फेलियर करने का मतलब कि स्विच आपने ऑन किया और प्रॉपर्ली जो पॉइंट टच करना चाहिए वो नहीं हो सकता. डिजाइनिंग जो मैन्युफैक्चरर है उसके भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट आ गया. तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं. अप्लायंसेस ब्रेक डाउन, शॉर्ट और ओवरयूज, जो अप्लायंसेस घर के जो यूजेज है वो आपका खराब हो सकता है. उसके बाद ओवरयूज हो तो उससे ये सारे ट्रबल शूटिंग में हो सकते हैं. कॉमन ट्रबल इन अ पीवी सिस्टम, कॉमन क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इसमें आप देखिए. लो और नो पावर आउटपुट कब होगा, जब आपका पीवी मॉडल, जब लो और नो पावर आउटपुट कब होगा, जब पीवी पैनल पे जो सोलर इरेडिएशन है वो प्रॉपर्ली फॉलिंग आउट नहीं होगा. अब क्या क्या कारण है इसके देखते हैं. काउज मिस ओरिएंटेशन एंड रॉन्ग डील ट्रैकिंग. ऑब्वियस सी बात है, आपको बताया कि साउथ फेसिंग रखना है, 30 डिग्री पे गाजियाबाद में आपने रख दिया 30 डिग्री और वो आप साउथ के बजाय रख दिया वेस्ट फेसिंग जो अभी आपने देखा था. तो उस केस में आपका नो पावर होगा या लो पावर आउटपुट होगा. एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट, डस्ट ये जो सॉइल लॉसेस बोल रहे हैं, डस्ट रहेगा तो भी पावर जनरेशन कम हो जाएगा. क्रैक इन द ग्लास एंड लैमिनेशन, यदि क्रैक होगा तो सनलाइट जो रेडिएशन जो है वो डिफ्यूज होगा वहां से, वो जा नहीं पाएगा, पेनिट्रेट नहीं होगा, सेल तक नहीं पहुंच पाएगा. तो हो सकता है शैडो, अगर आपका शैडो है तो शैडो तो उसको
डैमेज कर देगा उस पर। जब रेडिएशन आएगा नहीं तो जनरेशन कहाँ से करेगा? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा अगर शैडो है, क्योंकि कभी से एनर्जी आएगा तभी तो उस एनर्जी का कन्वर्जन होगा। तो जब शैडो की वजह से एनर्जी आ ही नहीं पाएगा तो कन्वर्जन होगा नहीं। एंड टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट कंडीशन। अगर क्लाइमेट कंडीशन जैसा होगा, अगर आपका क्लाइमेट कंडीशन ऐसा बता रहा है कि सन रेडिएशन आपके पैनल पर नहीं आ रहा है तो ये जनरेशन करेगा नहीं। शॉर्ट सर्किट ऑफ द बाईपास डायोड, जो आपने बाईपास डायोड मैंने दिखाया था शैडो केस में, अगर वो शॉर्ट सर्किट कर देगा तो पूरा वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। फिर आपका पैनल जो है, जो एक स्ट्रिंग में लगा हुआ पूरा स्ट्रिंग ही काम नहीं करेगा, यानी कि सारे पैनल वो बेकार हो जाएंगे। लूज कनेक्शन ऑफ द वायर एंड द टैप, अगर लूज कनेक्शन है तो लूज कनेक्शन होने के बाद क्या आ गया, वो सर्किट ब्रेक हो गया तो आपका काम है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसमें लो और नो पावर आउटपुट होगा। चार्ज कंट्रोलर, नो करंट इज फ्लोइंग टू द बैटरी, बैटरी से क्या हो रहा है, कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। सिग्नल फुली चार्ज थ्रू बैटरी इज जस्ट बीइंग चार्ज, जो सिग्नल है फुली चार्ज होगा थ्रू द बैटरी इज जस्ट बीइंग चार्ज, और ये शो करेगा कि बैटरी जो है वो चार्ज में है। ये प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके चार्ज कंट्रोल। नो करंट इज फ्लोइंग टू द बैटरी, बैटरी में करंट नहीं फ्लो करेगा, ये शो करेगा कि बैटरी चार्ज हो रहा है, फुली चार्ज है, और बैटरी में इज जस्ट बीइंग चार्ज, और कीप चार्जिंग इवन व्हेन द फुल चार्ज, और फुल चार्ज शो करेगा और बैटरी क्या है वो चार्ज करता है। तो ये सारे चार्ज कंट्रोलर में प्रॉब्लम हो सकते हैं। काउजेज क्या क्यों हो सकता है, ब्लो अप फ्यूज, अगर फ्यूज आपका हो जाएगा तो आपका करंट बैटरी में नहीं जाएगा, ये सर्किट ब्रेक हो गया। उसके बाद सिग्नल फुली चार्ज थ्रू द बैटरी जस्ट बीइंग चार्ज, सेट पॉइंट वोल्टेज आर नॉट विद इन द सेट एक्सटेंडर, जो आपने वोल्टेज जो लिया है, जो आपका सिग्नल फुली चार्ज शो कर रहा है जस्ट बीइंग चार्ज, सेट पॉइंट वोल्टेज आर नॉट विद इन द सेट एक्सटेंडर, जो एक्सटेंडर आपका है, जो चार्ज कंट्रोल का एक्सटेंडर है उसके विदिन नहीं है तब ये शो करेगा। लूज कनेक्शन कीप चार्जिंग इवन व्हेन फुल चार्ज, ये प्रॉब्लम और क्या हो सकता है, सिग्नल फुली चार्ज इस लूज कनेक्शन होगा तो भी ये शो करेगा। एंड ये क्या है, कीप चार्जिंग इवन व्हेन द फुल चार्ज, ये माल फंक्शन ऑफ द इंटरनल सर्किट, सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होगा तब ये शो करेगा। बैटरी इजीली डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, कैन नॉट बी चार्ज, या तो आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो गया आपका चार्ज नहीं लेगा। अनइक्वल सेल वोल्टेज, सभी सेल में क्या है डिफरेंट वोल्टेज, क्या क्या हो सकते हैं, जब इजीली डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब सल्फेशन हो रहा है, सल्फर डिपोजिशन हो रहा है, उसमें प्लेट्स लगे होते हैं, जब प्लेट्स पे क्या होगा सल्फर का डिपोजिशन हो जाएगा तो जो कैथोड और एनोड की तरह जब बिहेव कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो प्रॉपर्ली होगा वो डिपोजिशन हो जाएगा तो डायरेक्टली वो लिक्विड जो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा कैथोड और एनोड को, तो उस समय क्या होगा चार्ज का सेपरेशन जो होता है वो चार्ज सेपरेट नहीं होगा, तो चार्ज सेपरेट नहीं होगा तो स्लाइटली, जैसे सपोज दैट ये आपका प्लेट है, इसका कुछ पार्ट कवर हो गया कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो अब जब आप चार्जिंग करेंगे तो कहां पे चार्ज का डिकम्पोजिशन होगा, जो पॉइंट ओपन होगा वहीं पे होगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट जहां पे कवर वहां तो कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है, तो क्यू चार्ज है सो वहां पे आपका डिकम्पोज होगा आपका कैथोड एंड एनोड पे, तो कुछ देर के लिए वो काम करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा वो बंद हो जाएगा, बैटरी आपका काम नहीं करेगा, तो इजीली डिस्चार्ज होगा, बहुत जल्दी डिस्चार्ज है। कैन नॉट बी चार्ज, ड्राइड अप बैटरी सॉल्यूशन, अगर बैटरी में जो लिक्विड है वो अगर आपका ड्राई हो गया, सॉल्यूशन जो है जो आप लिक्विड जो इनसाइड बैटरी रहता है तो वो चार्ज नहीं करेगा। स्ट्रेटिफिकेशन, ये अनइक्वल सेल वोल्टेज, ये अनइक्वल सेल वोल्टेज तब होगा जब आपका स्ट्रेटिफिकेशन का केस होगा, जो मैंने बताया था कि एसिड और लिक्विड जो वाटर है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, तो उस केस में आपका अनइक्वल सेल, जहां पे आपका ज्यादा यानी कि अच्छा मिक्सचर बना हुआ है वहां पे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जहां पे आपका सेपरेट हो रखा है ये जो मिक्सचर है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मिक्सचर का, जो लिक्विड जो बना हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो अगर प्रॉपर्ली नहीं है तो वहां वोल्टेज कम मिलेगा। लूज कनेक्शन एट द टर्मिनल, टर्मिनल पे अगर लूज कनेक्शन है तो भी डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम होगा और चार्जिंग प्रॉब्लम होगा। हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है तो उस केस में भी आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस केस में क्या हो सकता है कि जो ये है आपका बैटरी वो आपका ड्राई हो सकता है, ठीक है। लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी लीकेज है तो भी बैटरी आपका डिस्चार्ज हो सकता है और डैमेज हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा उसमें से करंट आउट हो रहा है। एंड द एंड ऑफ द लाइफ, जब बैटरी की लाइफ समाप्त हो जाती है तो ये सारे प्रॉब्लम उसमें आने लगते हैं, ये सारे मेजर इशू है बैटरी के साथ। तो ये है आपका जो मेंटेनेंस है, ये कैसे आप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम को मेंटेन रख सकते हैं और क्या क्या पैरामीटर यूज करने हैं कैसे करने हैं। तो अभी आपने इसमें देखा कि ज्यादा इसमें
हार्ड एंड फास्ट मेंटेनेंस नहीं है, सिंपल मेंटेनेंस है, ज्यादा मोर स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस लेमन पर्सन जो है सिंपल अगर थोड़ा सा उसको आइडिया है कैसे क्या करना है वो ऐसे उसके मेंटेन कर सकता है और सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम को इजीली यूज करके अपने रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सकता है। तो ये था आपका सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम एंड इसकी मेंटेनेंस। आपने अभी तक देख लिया सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम कितने तरह के होते हैं, उसके मेंटेनेंस कैसे करना है, उसके रख रखाव कैसे रखना है, बैटरी वगैरह ये सब क्या करना है, चार्ज कंट्रोल कैसे मेंटेन रखना है। तो ये सारी चीजें आपने अभी तक के लेक्चर में देखा। अब हम लोग देखेंगे कंसंट्रेटेड सोलर पावर, जो सोलर थर्मल पावर होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिर हम लोग विशिष्ट सॉफ्टवेयर को एनालिसिस को देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ी देर के लिए उसको देखते हैं, कंसंट्रेटेड सोलर पावर को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोग को, पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन अगर आप लोग को है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछो। ये सर जो पीवी है इस तरह ग्लास का कलर लगाते हैं। आवाजें कट रही है धर्मेंद्र। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो भी मॉड्यूल बनता है तो उसके ग्लास आते हैं ना उस के लिए। आवाजें तुम्हारे कट कट क्या है, फिर से बोलो क्या बोलो। सर ये होते हैं ना। नहीं सुना इधर, कोई सुन रहा है, किसी किसी को समझ में आ रहा है तो बोल सकता है। क्या बोल रहा है ये? हेलो सर। हाँ क्या सर? ऐसा करो चैट सेक्शन में लिखो, तुम क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है कुछ भी, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई। मॉड्यूल पर कवर के लिए हम ग्लास का यूज करते हैं, तो सर उसमें पन्ने की परफॉर्मेंस, अच्छा पैनल की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? एक्चुअली होता क्या है, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पैनल का या मॉड्यूल का, तो उस समय क्या होता है, जो उस पे ग्लास जो डाला जाता है, तो ग्लास जो होता है प्रॉपर ट्रांसमिटिविटी होती है उस ग्लास की, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है इरेडिएशन। जो एफिशिएंसी, जो इरेडिएशन की जो इंटेंसिटी होता है, ऑब्वियसली ग्लास रिड्यूस करता है। लेकिन आपको पहले भी मैंने बताया है कि जो आपको सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम होता है उसको एक्साइट करने के लिए और उसको वर्क करने के लिए सिंपल लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। आपको याद है कि सिलिकॉन का जो डिप्लीशन लेयर होता है अप्रोक्सीमेटली 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो उसी डिप्लीशन लेयर को ब्रेकआउट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप ग्लास डाल भी देते हैं सर्टेन, ऑब्वियस सी बात है उस रेडिएशन को कम करता है, इंटेंसिटी को कम करता है ग्लास, बट वो जितना रिक्वायर्ड होता है उतना सनलाइट से फुलफिल हो जाता है। उससे ज्यादा आता है तो स्लाइटली पार्ट तो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, उसने रेडिएशन को कम कर देता, लेकिन जितना 0.5 इलेक्ट्रो वोल्ट जो होता है इतना ज्यादा ह्यूज एनर्जी होता है उसमें कि उतना तो फुलफिल कर ही देता है। और उससे ज्यादा आएगा तो उसके समय क्या होगा आपका धीरे धीरे, क्योंकि आपको दो पार्ट है उसमें, सोलर फोटोवोल्टिक एंड थर्मल पार्ट है। अगर ज्यादा आपका रेडिएशन आएगा तो पैनल का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ज्यादा रेडिएशन भी हमें नहीं चाहिए उसके लिए, बहुत ज्यादा भी रेडिएशन जो रिक्वायर्ड होगा सोलर फोटोवोल्टिक के लिए वो बहुत ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड है। तो सोलर पैनल पर ग्लास का लेमिनेशन करने से, या जो आप वो पॉलीविनाइल जो सीट लगाते हैं जो लेमिनेशन वाला वो भी लगता है, दोनों ही लगता है, उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ बच जाती है सेल की। नहीं तो सेल पे क्या होगा, कभी भी अगर उसको ओपन कर दिया जाए और एक पत्थर भी कोई मार देगा तो क्रैक आउट हो जाएगा और उससे पूरा पैनल डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको लेमिनेट किया जाता है ताकि इसकी सस्टेनेबिलिटी और इसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज कर जाए।
इसीलिए ग्लास लगाया जाता है। और सोलर फोटोवोल्टेक को काम करने के लिए जो वर्किंग होगा, जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, वो यूवी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है। आपको मैंने शायद इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सनलाइट, द फर्स्ट इज द लाइट एंड सेकंड इज द हीट। तो हमें लाइट की जरूरत होती है, हीट की जरूरत नहीं होती है। तो ज्यादा जहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप सोलर थर्मल कलेक्टर अभी जो आप देखने जाएंगे, उसमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट हीट एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कि हम फोटोन्स ऑफ लाइट को एनर्जी को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट हम लोग तो गांव घर से बिलोंग करते हैं, आपने छोटे छोटे सैंपलिंग पौधे के लिए और उसको आपने बागवानी की, ठीक है, और उसको अब आप क्या कर रहे हैं, पानी डालने जा रहे हैं। जब पानी आप डालेंगे, अगर आपने ज्यादा फोर्स से, सपोज दैट आपने मोटर के पंप पाइप से आपने लिया, मोटर से कनेक्ट कर रखा है और उससे आप डाल रहे हैं पानी, अगर आप उसके रूट पे जहाँ पे वो कनेक्ट ग्राउंड से वो है, वहां पे अगर आप ज्यादा फोर्स से पानी मारेंगे तो क्या आ जाएगा, वो सैंपलिंग निकल जाएगा, ग्राउंड से बाहर निकल जाएगा। तो सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम में भी क्या होता है कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, उस डिप्लेशन लेयर को ब्रेकआउट कर सके, ब्रेकआउट करके वो मूवमेंट कर सके। बस उतना आपने एनर्जी दे दिया, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। अगर उससे ज्यादा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो जो प्रॉपर मूवमेंट जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, वो प्रॉपर नहीं रहेगा। फिर वो माने जितने वे में मूव करना लगेगा, और जितने में मूव करेगा तो वहां पे कोलिजन होगा और फिर हीट डेवलप होगा, और ये हीट जब डेवलप होगा तो टेंपरेचर बढ़ेगा, वो आपका करंट नहीं बनेगा। इसलिए मैंने बताया कि ये हमारा कंसेप्ट गलत है कि गर्मी के दिनों में ज्यादा गर्मी पड़ती है, सनलाइट ज्यादा आता है, तो हमारा सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम को अच्छा वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, और टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड कब हमको मिलता है, जब हम ठंडी के दिनों में सुबह को उठते हैं, जब बहुत ज्यादा ठंडी लग रही होती है और अचानक दिन में अच्छी सी धूप हो गई, क्लियर स्काई हो गया, तब आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होगा वो 25 डिग्री। नहीं तो आप 2 महीने देख लीजिए, यानी कि जनवरी, दिसंबर, जनवरी एंड हाफ फरवरी, इससे ज्यादा नहीं मिलता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर हमारे दिल्ली में। तो इसलिए अगर इससे ज्यादा ये टेम्परेचर जा रहा है, इसका मतलब ज्यादातर हीटिंग में यूज होगा, आपका फोटोवोल्टेक सिस्टम यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ग्लास के डालने से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वो रिफ्लेक्ट भी कर देगा तो उसका मेजर पार्ट जितनी रिक्वायर्ड होता है उससे ज्यादा एनर्जी उसको मिल जाता है, इसलिए ग्लास का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर हम चले सोलर थर्मल में? क्योंकि सोलर फोटोवोल्टेक का डिस्कशन आज हम क्लोज कर रहे हैं, अब हम लोग सोलर थर्मल करेंगे, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर देखेंगे। किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए अच्छी बात है। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर जैसे मैंने तो ये सुना है कि जैसे सर ज्यादा धूप होता है फिर वो सोलर अच्छे से बैटरी को चार्ज करता है। यही तो गलत कंसेप्ट है हम लोगों का, गलत कंसेप्ट है ये, ऐसा नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है बेटा कि ज्यादा धूप होता है तो ज्यादा ही। हाँ धूप होना चाहिए, धूप अच्छी होनी चाहिए, क्लियर स्काई होनी चाहिए, लेकिन गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में जब होगा तब अच्छा से चार्ज करेगा। गर्मी के दिनों में अगर धूप होगा, ज्यादा होगा, तो होता क्या है, ऑलरेडी एम्बिएंट का टेम्परेचर आप दिल्ली एनसीआर में देखिए कितना 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एम्बिएंट का टेम्परेचर, तो पैनल का जो टेम्परेचर होता है और ज्यादा बढ़ जाता है, वो 60-65 के आसपास चलेगा। तो उसका क्या होता है, हीटिंग की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाता है, उसका एफिशिएंसी चलाता है 8% या 9% पे हो जाएगा। जो एफिशिएंसी उसका 18% या 16% है पॉलीक्रिस्टलाइन का, वो आपका घट के आ जाएगा 8 से 9%। एफिशिएंसी घटने लगता है टेम्परेचर। ये चीजें आपको दिखाया है, कैसे आपने देखा है कि वोल्टेज टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। जी सर। कोई कुछ पूछ रहा है अगर? नहीं सर, दूसरा भाई पढ़ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा है कि वोल्टेज क्या होता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है, जबकि शॉर्ट सर्किट करंट स्लाइटली इंक्रीज, बहुत कम परसेंटेज होता है इंक्रीज करने का। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे एरिया जो आईवी कर्व का बनता है वो डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से।
तो आपका परफॉर्मेंस क्या आ जाएगा, सिस्टम का डिक्रीज होता है। तो ये तो टेक्निकली आप नहीं जानते थे तब ये कॉन्सेप्ट था, अब आप टेक्निकली जान गए हैं। तो किसी कोई भी अगर बोले कि टेम्परेचर बढ़ने से ये होता है ना, बढ़ने से बढ़ता है कब, जब बिलो यानी 0 से 25 तक बढ़ेगा, ठीक है, और 25 से जब बियॉन्ड जाएगा तो परफॉर्मेंस घटता है। हाँ, क्लियर स्काई जरूरी है, सन स्काई क्लियर होना चाहिए तभी तो रेडिएशन आएगा सरफेस पे, तो क्लियर होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, ठीक है। और लेह लद्दाख इसलिए मैंने बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है कि वहाँ पे टेम्परेचर कभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता ही नहीं है, बहुत ठंडा रहता है वहाँ पे, तो इसलिए वो क्या है, और पूरा आइस कैप रहता है चारों तरफ, आइस है, तो वहाँ पे ना डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं होगा। पोल्यूशन जो आप यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर जो देखते हैं environment में, वो पार्टिकुलेट मैटर भी नहीं होगा वहाँ पे, तो डस्ट उस्ट नहीं होगा, तो जो सन से जो रेडिएशन आएगा वो प्रॉपर्ली सरफेस पे फॉलिंग होगा। एज वेल एज जो आइस कैप जो है वहाँ पे, उस पे से भी रिफ्लेक्ट होकर सन पे, सन का जो रेडिएशन है वो पैनल पे पड़ेगा, तो इसीलिए वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और टेम्परेचर आपका एचटीसी के और एचटीसी के अराउंड या एचटीसी से कम नहीं होता है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस बेटर होता है। ठीक है, ओके सर। चलिए आप अपना माइक बंद कर लीजिए, साउंड आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी क्या है कंसेप्ट और कैसे ये काम करता है। तो दो तरह से ये भी रिन्यूएबल एनर्जी का है सोर्स है, बट ये जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो आपका इजी टेक्नोलॉजी है, सिंपल टेक्नोलॉजी है, आपको कुछ करना नहीं, बस एक पैनल लिया, पैनल से वायर कनेक्ट किया और आपने जो एंगल ऑफ एल्टीट्यूड है उससे आपने उसको इंक्लाइन करके रख दिया और आपका जो पैनल काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे पैरामीटर जितने भी मैकेनिकल पैरामीटर है, डिजाइन पैरामीटर आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसे होना चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ना चाहिए, जो फोकल पॉइंट पे वो आपको डिजाइन करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट काम करता है, वहाँ पे वाटर यूज करते हैं, बॉयलर यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे यूज होता है। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली और आपका यानी कि हाई स्किल बंदों की रिक्वायरमेंट है, जिसको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, डिजाइन पैरामीटर आने चाहिए, उसके वही ऐसे ये प्रोजेक्ट कर सकता है। और ये भी आपका 100% पॉल्यूशन फ्री एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, आप इससे एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों ही चीजें चल रहा है, आपका सोलर फोटोवोल्टिक भी चल रहा है एंड कंसंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन सोलर फोटोवोल्टिक क्या है, ये कोई भी पर्सन मार्केट में परचेज करके अपने घर पे इंस्टॉल करके अपनी डे टू डे यूज है इसको फुलफिल कर सकता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हर पर्सन नहीं कर सकता है, इसके लिए एक एक्सपर्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी, एक एक्सपर्ट डिजाइन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी, इंस्टॉलेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको इंस्टॉल करेगा प्रॉपर्ली, तभी जाके सिस्टम काम करेगा। कई सारे बच्चों ने इस पर प्रोजेक्ट किया, कभी भी कंसंट्रेटर जब बनाते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका फोकल पॉइंट मिल नहीं पाता है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो स्किल रिक्वायरमेंट है, डिजाइनिंग की जो रिक्वायरमेंट है, क्या टेक्नोलॉजी कैसे हमें डिजाइन करना है, क्या माइंड में उसको रखना है, वो चीजें वो फुलफिल नहीं होता। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर्ल्ड वाइड। तो आप देखेंगे एज पर द डेटा यू कैन सी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अराउंड 1.34 billion, whereas for the China 1.45 billion and USA is 0.32 billion. The electricity generation capacity for the India is 315 gigawatts, for the China 1505 gigawatts, and for the USA it is 1060 gigawatts. As you can see, China is around 5 times the India. India capacity is 315 gigawatts and the China capacity is approximately is 1505. So it is approximately 3 times the India, and the USA is also 3 times more than the India. So USA population is very low, 0.32 billion, but the Indian population and the China population are very close to each other. But the in case of the India and China, you can see large gap. So also you can see here the coal-based electricity generation share. In India, the total power required for the day-to-day use in the India is
totally fulfilled, approximately 67% fulfilled by the coal-based electricity generation. Whereas China demand full 50% demand fulfilled by the coal generation, but in the USA around 30% demand fulfilled by the coal generation and 17% fulfilled by the renewable energy. GDP in the trillion US dollar, you can see the India GDP 1.877, China 9.24, and the USA is approximately 16.77. Due to this reason, the value of the US dollar is high, whereas Indian rupees is very low. And the per capita electricity consumption is in India 7,765 kilowatt, whereas in the China 3,732 and in the USA 12,988. जैसे जैसे आपकी कंट्री डेवलप करेगी, कोई भी अगर जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा होता है वहाँ पे ये पर कैपिटा कंजम्पशन जो होगा वो ज्यादा होगा। आप दिल्ली की अगर पर कैपिटा कंजम्पशन देखेंगे दिल्ली एनसीआर की तो ज्यादा होगी इन कंपेयर टू आप चले जाइए जौनपुर चले जाइए बनारस चले जाइए जो आप जैसे जैसे या किसी विलेज एरिया में चले जाइए तो वहाँ पे जो पर कैपिटा क्यों क्योंकि जो डेवलपमेंट है जहाँ पे डेवलपमेंट होगा वहीं पे लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे वहीं पे ज्यादा यूज होगा लेकिन जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा वहाँ पे ये कंजम्पशन कम होगा। तो अब चाइना को देखें तो चाइना की पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो इंडिया से काफी ज्यादा है, ये 5 टाइम्स है इंडिया से। और लेकिन अगर आप यूएसए की देखेंगे तो यूएसए की जो कंजम्पशन है वो अप्रोक्सीमेटली चाइना का 4 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली बात है इन द यूएसए क्या है डेवलपमेंट ज्यादा है उसके कंपेयर में, जबकि इंडिया में क्या है डेवलपमेंट जो है आपका कम है, चाइना में हमारे यहाँ से ज्यादा डेवलपमेंट है। तो ये सारी डिपेंड करता है एज पर द डेवलपमेंट कंजम्पशन रेट बढ़ता है। सोलर एनर्जी अगर आप देखें तो 12 गीगावाट सोलर अभी तक जो हम 2022 तक अभी तक हम 80 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं। ये आपका जो डेटा है ये 2014 का है। 80 गीगावाट तक 12 गीगावाट इंडिया है अभी कैपेसिटी, लेकिन अब क्या हो गया हम 80 गीगावाट के आसपास है एंड अप टू 2022 आवर कैपेसिटी विल बी approximately 175 gigawatt and as per the new target it will be around 225 gigawatt and in the China 80 gigawatts and in the USA it is 40 gigawatts solar. And the solar energy is 1 gigawatt. This is the concentrated solar power. Out of 12 gigawatt, 1 gigawatt is the concentrated solar power. In the China it is 10 gigawatt and in the USA it is nil, zero. They are not using the concentrated solar power technology. They are generally using the solar photovoltaic technology. This is the global energy data. What is the status of the biopower? If you can see from this data, globally total power is 106 gigawatt, and in the in this one is the uh, unite. This is the EU. यूरोपियन यूनियन करके है ये 28 कंट्री उसका ये डेटा है एंड ब्रिक्स ये आपके कंट्री का ये अपना एसोसिएशन है तो उसकी जो कंजम्पशन ये जो है आपका बायो पावर दिस वन इज द 36 एंड दिस वन इज द 30। अगर आप कंट्री वाइज देखें तो एज पर द कंट्री वाइज द बायो पावर इन द इंडिया इज 5.6 gigawatt, in the Japan 4.8, in the Germany 7.8, in the United States 16.7, and in the China 10.3. From this data you can see the United States in the biopower at the top. Top पे है आपका United States, first position, second position is the China, third position is the Germany, and the fourth position is the India. India is at the fourth position in the biopower. In the geothermal power, you can see in United States is at the top, that is the 3.6 gigawatt, whereas China has nil capacity, Germany has nil capacity, Japan has 0.5, India has also nil capacity. In the hydropower, China has 296 gigawatt, where United States 80 gigawatt, and this is the Germany has 5.6, Japan 22, and so on. Here also you can see in the hydropower China is at the top position, United States at the second position, and India is at the third position.
ASEAN power in the ASEAN power, all the countries approximately need capacity solar PV. In the solar PV, you can see the China is at the top position, Germany at the second position, Japan is the third position, and the United States is the fourth, and in the fifth, Italy is the fifth, and India is the sixth. But is in now in the recent situation, the India is at the fourth position and the China is at the top position. In the case of the concentrated solar power thermal power, China has zero capacity, United States 1.7 and India is 0.2. So and Spain is 0.3. So India is also here at the third position. This is the first, this one is the second, this one is the third. In the wind power, our capacity is approximately 25 gigawatts. So this is the total renewable energy capacity of the whole world. This is the solar power potential worldwide. The main reason for the solar thermal power is that is this is the red region. Red region is the more suitable for the solar thermal power. In case of the solar thermal power, direct radiation is required. As you know that there are two parts of the irradiation, diffuse radiation and the direct radiation. For the solar thermal collector and for the concentrated solar power, what types of the irradiation is required? Direct solar irradiation is required, having more intensity, having high intensity. So these all the red region are more suitable for the concentrated solar power. In the India, Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, these estates are more suitable for the concentrated solar power technology. See here potential of the solar energy in India. About 5,000 trillion kilowatt per year energy is incident over the Indian land area. On the total land area of the India, this is the total land area of the India. How much energy falling off from the sun? That is a 5,000 trillion kilowatt hour per year, and the most part receiving approximately 4 to 7 kilowatt per meter square per day, approximately 6 kilowatt hour per meter square per day. Every region, if you take the average data, approximately 6 kilowatt per meter square per day, and the 1% of the land area is sufficient to meet the electricity need of the India till 2030. If we can use the 1% land area, if we can use the 1% land area of the India, the total energy consumption of our country can be fulfilled up to 2031. And the highest on annual global radiation is received in the Rajasthan. This is the Rajasthan. What is this value is 5.5 to 6.8 kilowatt per meter square per day, and the northern Gujarat. Gujarat and Rajasthan and Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. These are the suitable places for the concentrated solar power. And 2050 to 300 clear and sunny day in a year. Out of 365 days in a year, approximately you will get 300 clear sunny days. That means 300 day there is no any cloud, there is no any hindrance between the sun irradiation and the earth surface. This is the global condition. This is the geographical condition of the India. India can have a concentrated solar power installed base of 4 to 5 gigawatt by 2020. Up to 2020, that means recently we have capacity around 4 to 5 gigawatt of the solar concentrated power. And this is the Jawaharlal Nehru Solar Mission that was initiated in 11 January 2010 in the government of Congress when the Mr. Manmohan Singh was our Prime Minister. It was started Jawaharlal Nehru National Solar Mission. The phase one. For the 3 year from 2010 to 13, it's targeted as 1 gigawatt to 2 gigawatt, and phase two is up from 2013 to 2017 for the 4 year, and its capacity targeted as 4 gigawatt to 10 gigawatt. And phase three
that's running right now, and it's targeted as for the 5 year 2017 to 2022. Its capacity should be 22 gigawatts. It is and now it is targeted 22 gigawatt till 2022. Up to 2022, 22 gigawatt 22 gigawatt power can be generated by the solar concentrated power in India. This is the targeted value. Out of 122 sorry 225 gigawatt, 22 gigawatt will be only concentrated solar power, and the remaining will be solar photovoltaic energy. So it is a big scope and big future scope in the solar photovoltaic technology in India. Modified Jawaharlal Nehru National Solar Mission, announced in the 2015 to 16 by Mr. Arun Jaitley, when the Mr. Arun Jaitley was our finance minister, and the first budget passed by the Mr. Arun Jaitley in the 2015, and the targeted 175 gigawatt till 2022, and now it is revised. And what is this value? This value is approximately 200 to 225 gigawatt. And the solar, out of 175, it was targeted as solar power will be 100 gigawatt, wind power will be 60 gigawatt, and biomass will be 10 gigawatt, and small hydro will be 5. This is the total renewable energy capacity that was targeted in 2015-16 for the up to 2020, and this is only solar power. This one is the only solar power 100 gigawatt. Now it is revised. Its capacity is 225 gigawatt. And the comparison between the solar photovoltaic technology and concentrated solar power, as you can see, the capital cost per megawatt. If you want to install 1 megawatt capacity of the solar photovoltaic technology system, then its cost will be 5.87 crore. Well, for the concentrated solar power, its cost will be around 12 crore. As you can see, it is approximately 2 times of the solar photovoltaic technology. And a skill level required in the solar photovoltaic, there is no skill level required, but in the concentrated solar power is a skill level required. Water required? Yes, water required. In the solar photovoltaic system, no water required, but in the concentrated solar power, water required. Radiation, diffusion, direct radiation required for the solar photovoltaic system, but in the concentrated solar power, only direct radiation required. Land area required for the per megawatt, it is around 2.5 acres, and for the concentrated power it is required 9.6 acres. Efficiency of the solar photovoltaic technology is around 17 to 18%, whereas for the concentrated solar power its efficiency is around 20 to 25%. Its efficiency is more in compared to solar photovoltaic technology, and you can also modify its efficiency, and you can increase the efficiency up to the 40% in case of the concentrated solar power. But in case of the solar photovoltaic technology, efficiency is a big issue, and its efficiency is very low, and you cannot increase efficiency of the solar photovoltaic technology. But as per the research point of view, if you can use the another material in compared to silicon, then the efficiency of the solar photovoltaic technology can also increase. And as per the data, recently scientists are already working on solar photovoltaic technology, and approximately 50% efficiency got in case of the solar photovoltaic technology. And generally in case of the Mars mission, and or for the satellite, we are also using solar photovoltaic technology, and that solar photovoltaic technology and that types of the panel have more efficiency around 40 to 50%. And but the cost wise, its cost is very high, that are using in the satellites and etc. So on lifetime, its life is 25 years, and its life is 40 years. So obviously, its life is more. Payback period, the solar photovoltaic payback period is 3 to 4 years, but concentrated solar power payback period
is approximately 5 to 12 years. Installation period in the 1 year you can install the 1 megawatt, but it can take more time 2 to 3 years because numbers of more components in the concentrator solar power and worldwide electricity production capacity in gigawatt in the solar photovoltaic technology worldwide 227 gigawatt, but in case of the concentrated solar power it is 4.8 gigawatt, very less. Advantage over the competitive technology: heat storage of electricity supply after sunset. In case of the concentrated solar power, uh, you have advantage. You can store the heat energy and electricity supply after the sunset. You can supply the electricity after the sunset. But in case of the photovoltaic technology, you cannot supply the electricity after the sunset, except if you have battery bank capacity, then you can supply. Process heat generation. Process heat generation means like a thermal power plant. Here the heat generation takes place, and that heat generation used to generate the steam in a boiler, and that expanded on high pressure steam used to expand on the turbine and generate the power. Hybrid option also available in the case of the concentrated solar power, good for the high temperature region. This good like Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, and Andhra Pradesh. This technology is more feasible in compared to solar photovoltaic technology. Predictable and reliable power, less variables required, water distillation along with the electricity generation. So these are the advantages. What are the what other benefits? Carbon emission reduction. Emission reduction takes place in the solar photovoltaic technology also, and as well as in the concentrated solar power. The CBM benefits: each square meter of concentrated solar power can avoid annual emission of 200 to 300 kilograms of carbon dioxide. Each square meter. 1 square meter of the concentrated solar photovoltaic, concentrated solar power can avoid annual emission of 200 to 300 kilograms of carbon dioxide depending on its contribution. No fuel or its transportation cost. Substitutes fossil fuel use. No fossil fuel use, like we are not using coal, diesel, petrol, etc. Energy security and employment generation. Lots of employment generation in this technology. Concentrated solar power is still in a central stage of the development in the world. There is over 4.8 gigawatt installation capacity of concentrated solar power at the world over. Lots of scope and research required in this technology, because in present the concentrated solar power technology is a bulky and high skill technology, and if you can see worldwide its capacity is very low, because the cost as well as the technology is very complicated. So this is the total data. As you can see, the what is the operational is 42%, announced 90%, development under development 15%, planning 50%, construction 7%, and commissioning 1%. This is the present data. That means in the 2000, and this is the data of the 2016, and recently it may be changed. These are the list of the solar thermal power plant in India. As you can see, generally most of the plant in Rajasthan. As see, Abhijit Solar Project. This is installed in the Rajasthan Jaisalmer. ACME Solar Power. This is the beacon in the beacon Rajasthan, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh. This is in the National Solar Thermal Power Facility. This one is the Gurgaon and Rajasthan. So mostly you can see the project concentrated solar power plant are installed in Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, and one plant in the Gurgaon. Uh, Such types of system is only feasible and the high concentrator, high irradiation level location, like when the area where we are getting the direct radiation, more direct radiation getting on the surface. So this technology is only possible there. These are the different commercial concentrated solar power. Different types of the. This is known as parabolic trough. This is the parabolic type.
See here, this is the parabolic trough. The sun irradiation falling, direct irradiation falling on the surface, get reflected, and this is the observer pipe, and the total light get concentrated at on this pipe, and the water flow through this pipe and get converted into steam, and that steam get expanded on the turbine, and we can generate the power, and also we can use the steam for the another purpose. The what is the maximum temperature? You can get the 400 degrees centigrade maximum temperature by the parabolic trough technology. The line focusing. This is the focus of the parabolic trough. See here, this is the line. This line is the focus of the parabolic trough. So what is the technology? Just we are using the reflection of the sunlight and get concentrated at a particular point. And this point, this pipe is installed. Observer pipe is installed, and this observer pipe absorbs the sunlight and just convert the water into the steam. The water consume this technology is water consume, that is the water is a working unit, we are using the water, and the consequence क्या है parabolic mirror. This is a parabolic heat storage feasible must commercialized, good for hybrid option, requires flat land and good receiver uh, receiver but low turbine, good receiver efficiency but low turbine efficiency. So this is known as parabolic trough technology. As you can see, this one is the steel structure where it is installed. This is the parabolic mirror, reflecting surface is here, and this is the observer pipe, and so this is known as parabolic trough technology. This is the central tower technology. Like this one, as you can see, numbers of reflectors installed in the acres of area, and this is the receiver. This is the central receiver. All the sun irradiation coming from the sun get reflected from this surface like this, get reflected and received at a particular receiver. The total irradiation receiving at this particular receiver, and now the water flow to this receiver, and this water get converted into a steam, and we can use for the all the purposes like generating the power, and for the cooking purpose we are also using the steam. So here the temperature is high in compared to parabolic trough. In this types of technology, you can get the temperature around on 600 degrees centigrade, 600 degrees centigrade to 800. रियांश क्या कर रहा है, देख रहे हैं क्लास चल रहा है. So in this technology, central tower technology, you will get approximately 600 to 8 degrees centigrade. But in a parabolic trough, you can get the temperature approximately 400 degrees centigrade. Point focusing. This is a what? This is a technology point focusing. The reflection takes place, and at a particular point, all the reflection, all the radiation falling on the surface get reflected at a particular point. जैसे कि हम लोग बचपन में देखते थे, एक ग्लास यूज करते थे किसके लिए, पेपर को बर्निंग आउट कराने के लिए. क्या टेक्नोलॉजी था? दैट इज द पार्टिकुलर पॉइंट. वो पार्टिकुलर पॉइंट फोकसिंग था, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होता था और पेपर क्या होता था, बर्निंग आउट होने लगता था. सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे हो रहा है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं, ये सारे रिफ्लेक्टर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है कि इस पे जो सनलाइट पड़ेगा वो फाइनली रिफ्लेक्ट होकर यहाँ रिसीवर पे आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा. ये मेन टेक्नोलॉजी है. तो आज के लिए मैं अब यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है. अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. हेलो, कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर.